So we will start by a simplest definition of environment. What do you mean by environment? Most of time we think that environment and ecosystem is similar, and we define it as a place where biotic and abiotic component interact with each other. इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। वो इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम दोनों को एक ही जो है डेफिनेशन से डिफाइन करते हैं। बट व्हाट डू यू मीन बाय इन्वायरमेंट? द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ इन्वायरमेंट इज द सराउंडिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्या है? सराउंडिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट। योर surrounding include your physical environment, your biological environment, your chemical environment and your social environment. जब भी आप सराउंडिंग्स की बात करते हैं तो सराउंडिंग्स में आपका फिजिकल एनवायरनमेंट आएगा, आपका बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट आएगा, केमिकल एनवायरनमेंट आएगा और आपका सोशल एनवायरनमेंट आएगा. So when we talk about the environment, as you want to buy a home in a particular area, then first question you will ask to someone that what is the environment of that particular area. जब भी आप किसी एरिया में घर खरीदने जाते हैं तो आप क्या बोलते हैं, क्या पूछते हैं? पहला क्वेश्चन क्या होता है कि उस एरिया का एनवायरनमेंट क्या है. सो व्हाट डू यू मीन बाय एनवायरनमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया? मींस सोशल एनवायरनमेंट. वहां पे आप यू आर नॉट आस्किंग अबाउट द वेदर कंडीशंस. आप ऐसा नहीं पूछ रहे हैं कि वहां पे टेम्परेचर क्या है ना. आप क्या पूछ रहे हैं? व्हाट डू यू वांट टू नो अबाउट? सोशल एनवायरनमेंट. आप जो है वहां पे उस जगह का सोशल एनवायरनमेंट जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस टाइप के लोग वहां पे रह रहे हैं एंड हाउ दे बिहेव एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर. उनका बिहेवियर कैसा है, वो कैसे एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट करते हैं. That is the social environment. So when we talk about the environment, you can say that the environment is the surrounding of an object. If you are an object, then your surrounding है ना, आपके सराउंडिंग में जो चीजें हैं. At present you just sitting in your room and you have a particular environment. आपके चारों तरफ एक particular environment है. What will be happen that if some noise create around to you, you will get disturbed. क्या होगा अगर आपके भी सराउंडिंग में नॉइस होगा? आप डिस्टर्ब होंगे. क्यों? क्योंकि अभी आपको फोकस करना है. यू हैव टू फोकस. कोई शोर कर रहा है, इवन छोटा बच्चा कोई है ना, देख क्रिएटिंग नॉइज, तो भी आप उसको आंखें दिखाएंगे, ऐसा करेंगे है ना, क्योंकि वो आपका इन्वायरमेंट है उस टाइम पे. एंड basically environment is very important. When you talk about the environment, you must know what is the physical situation in a particular area, what is the biological community in a particular area, what is the basic social environment in a particular area. So कोई भी आपसे सब बोले कि define environment, then you will simply say what is the environment? Surrounding of an object. ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर हो रहा है? गुड. What is environmental science? Basically, environmental science is a branch of science that deal with different streams of science. जब भी आप environmental science की बात करते हैं तो environmental science is just like a physics, chemistry and other branches of science. इसके जैसा नहीं है. If you want to do better in environmental science, you must know about a number of the subject. You must be aware about the
some concept of physics, chemistry, geology, biology, remote sensing, biostats, social science, like all the branches. So environmental science have a multi-dimension, multidisciplinary subject. You can't say like that if you don't know a basic of chemistry or physics, you can do better in environmental science. It is very hard. It is a basic reason that in our country, environmental science is not a job producing subject, basically. Why? Because uh, our education system is not at that level that we can make a student or make the knowledge of a student productive. हमारे यहाँ पे environment science को अच्छे से क्यों नहीं देखा जाता? उसकी वजह यही है ना? We just trying to a student putting everything in the mind of a student, and just you want to say that कि भाई this student must be perfect in every subject, but it is never happened. ये कैसे संभव है? ये संभव नहीं है. Environmental science, basically you have a little bit knowledge of every subject and you can implement them. So when you want to create or you want to find out a job in environmental science, then you must be very specific. आपको specific होना पड़ेगा, है ना? यहाँ पे क्या है? If you want to find a job, then you will say that sir remote sensing का diploma कर लो, है ना? सर ये environmental law का diploma कर लो. Why? Once you done your masters in environmental science, then why are you looking for some diploma, PG diploma? I think all these things will be very useful when you want to become a specialist of some subject. Environmental science के साथ problem यही है, इसको किसी कोई अच्छे से नहीं समझाएगा, है ना? आपको EIA पढ़ना है, even 99.9% student don't know what is the EIA. उनको नहीं पता, एक बुकिश डेफिनेशन वो मेरे को बता देंगे. Even most of the student don't know BOD, COD. That is the basic. So if you want to find the scope in environmental science, you must be very specific. आपको सारी ब्रांचेस के साथ नहीं चलना है. You just select one single branch. है ना? After that you can select more than one, है ना? As for example, as per me, my basic is air pollution, है ना? मैं air pollution में बहुत काम किया हूँ. And after that we move in pollution. Air pollution से मैंने pollution में move किया, है ना? Then I work a lot of the project of water treatment, designing of ETP, STP, and then slowly move toward to noise. Then I just relate pollution with energy efficiency. I done near about more than 100 project in energy efficiency project related to your pollution. है ना? बहुत सारे प्रोजेक्ट पे हमने काम किया है. उसके पीछे का वजह क्या है, साइंस क्या है या कॉन्सेप्ट क्या है कि आप अगर देखें, आप स्टार्टिंग में एक पर्टिकुलर चीज पे चले गए, है ना? I done my MSc, after that my MTech, and after my MTech I worked as an assistant professor for 3 years, and after that I worked near about 7 years as a environmental research scientist. But my core is pollution, है ना? मैं pollution पे ही काम करता हूँ, ठीक है? After that I just slowly move in analytical technique, like I'm GCMS expert, है ना? मैं GCMS पे काम करता हूँ. But that is a side. Core is pollution only.
So if you want to make the scope in environmental science, you have to select one particular thing. You can select pollution, and in pollution start with micro, as I did, है ना? After, or you can select the remote sensing, or you can select the solid waste, or you can select the soil. कुछ भी आप select कर सकते हो, उस पे आपने जो है एक्सपर्ट बनना है। ऐसा नहीं है कि भाई हाँ आप जो है मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है तो आप क्या करेंगे, आप सभी में एक्सपर्ट हो जाएंगे। ऐसा संभव है? यू कांट डू दिस। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप सभी ब्रांचेस में साइंस की एक्सपर्ट हो जाओ। So very first, when we done our MTech or MSc, our subject is very vast. After that, we will select a particular branch, one particular subject, one particular topic, you can say that, जिस पे भी आपने काम करना है, and उस पे आप जो है आगे काम करोगे। So, what is the basic principle? How environmental science works? When you talk about the principles of environmental science, then we know that we are living in a world where a lot of the things happening in the biological world, है ना? हम एक ऐसे संसार में रह रहे हैं जहाँ पे बायोलॉजिकल वर्ल्ड में बहुत सारी चीजें हैं। इफ इट यू कैन से द प्लेनेट, ना, आप प्लेनेट अगर यूज करेंगे वर्ल्ड की जगह तो ज्यादा अप्रोप्रिएट टर्म रहेगा। अगर आप अभी देखें जितने भी प्लेनेट्स हमें पता है, क्या वहां पे अभी तक लाइफ आइडेंटिफाई हुआ है ना? अभी तक जितना मुझे पता है कि कोई भी ऐसा प्लेनेट नहीं है जहां पे लाइफ को आइडेंटिफाई किया गया हो, है ना? आज तक ऐसा नहीं हुआ। तो यहाँ पे जो अर्थ है, अर्थ पे बेसिक जो प्रिंसिपल्स हैं, वी विल रिलेट दोज प्रिंसिपल टू एनवायरमेंटल साइंस एंड देन वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द स्कोप। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मेरा मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? फिर से सुनिए, धरती पे जो चीज घटित हो रही है, दैट इज गोइंग ऑन अर्थ, वी विल रिलेट इट टू आवर सब्जेक्ट एंड देन वी विल फाइंड आउट द स्कोप। जो हमारे यहाँ पे चल रहा है, हम उनको जानने की कोशिश करेंगे, उनको अपने सब्जेक्ट से रिलेट करेंगे और उसके बाद में हम अपना इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। सो लाइक प्रिंसिपल ऑफ डिपेंडेंस and mutual influence. We know that in Earth, on our Earth, what is happening that a number of the factors related to each other. बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं एक दूसरे पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट हैं। We can take the simplest example of rainfall. Basically, growth of trees or growth of crops in a particular area is directly related to rainfall, है ना? किसी एरिया में प्लांट ग्रोथ कैसा होगा, ये किस चीज पे डिपेंड करेगा? Basically, yes, rainfall is an important factor. You can take a lot of the example like this. One factor can influence the growth or life of another factor. एक फैक्टर जो है वो दूसरे फैक्टर को प्रभावित करता है, अफेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है। So this principle is known as principle of dependence and mutual influence. Key, what is happening that one factor directly or indirectly affect the another factor. So if you want to study what is the going on in a particular area, in a particular forest, then you will try to collect the data about the temperature, about the rainfall, about the humidity, about the nutrient, because all these factors directly
or indirectly affect the growth of forest. ठीक है बच्चों, अगर आप एक फॉरेस्ट में काम करना चाहते हैं, उसको ग्रोथ देखना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे बहुत सारे फैक्टर्स देखने पड़ेंगे। अब ये रिलेशन स्टेब्लिश हुआ, ये कौन सा प्रिंसिपल के बेस पे हुआ, प्रिंसिपल ऑफ डिपेंडेंस एंड म्यूचुअल इन्फ्लुएंस। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? थोड़ा जल्दी जल्दी बताओ मुझे ना, जैसे कि मेरे को लगे कि आप कनेक्टेड हो मेरे साथ में, जल्दी जल्दी टाइप किया करो। Good. Next principle is principle of balance. What do you mean by balance? We know that our system is very dynamic, but our ecosystem have the capability to make its own balance, and this concept is known as basically uh, basically, can anyone can tell the concept of balance? Yes, homeostasis है ना, इसको क्या बोलते हैं, homeostatics. Our ecosystem have the capability to make its own balance. If one factor is going to up, then nature will be reduced automatically and again create its own balance. अगर एक फैक्टर बढ़ जाता है तो नेचर उसको बैलेंस कर लेती है, और बैलेंस करके फिर से जीरो पे आ जाता है. You can take the simplest example of a pond where zooplankton is higher, then what will be happen that if the number of the zooplankton is growing more and more, then small fishes will also increase, है ना. एक particular pond में zooplanktons का number अगर increase होगा, then what will be happen that due to the presence of excess food, number of the small fishes will also increase. Small fishes का number भी क्या हो जाएगा, increase हो जाएगा. But as the number of the small fishes will be going to up and they start to eat up all the zooplankton, what will be happen that when the number of the zooplankton start to decline, then pond experience lack of food, and as food will not present in a pond, fishes will start to die, fishes मरना शुरू हो जाएंगे. And again what will be happen that pond will create its own balance. This concept is known as concept of homeostatics, and this principle is known as principle of balance. Third one is principle of unity. All the organism initiate their life by a single cell. We know very well, सभी जीवधारी, all organism अपना जीवन, अपना लाइफ एक सिंगल सेल से स्टार्ट करते हैं. Every cell have some basic component, है ना. As we know that cell have mitochondria, cell have nucleus, cytoplasm. Each and every cell contain near about same type of material. सभी को ये चीज पता है कि हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, एंड अदर ऑर्गेनिज्म भी जो है आपके कुछ कॉम्प्लेक्स हैं. एंड इफ यू मूव फ्रॉम मल्टी सेलुलर टू द सिंपलेस्ट फॉर्म, देन यू कैन से दैट सिंगुलर सेल ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरियम, है ना. वहां से आप चलेंगे, बैक्टीरिया इज आल्सो ए सेल, एंड आवर बॉडी आल्सो कंस्ट्रक्ट बाय द cells only. Our body contain billions, trillions cells. सभी को पता है?
या गुड, है ना। तो ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी, कि हम सभी जीवधारी, वी ऑल ऑर्गेनिज्म मेड अप बाय द वन सिंगल यूनिट, and these single unit again make some complex structure, then more complex, then more complex, and we human are the most complex creature on earth. हम सबसे ज्यादा complex creature हैं, है ना। बट इनिशियली लाइफ अगर हम देखें तो हम एक सिंगल सेल है, वहीं से लाइफ इनिशिएट होता है। प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्सिटी, sometime student confused in both these concept, principle of unity and principle of diversity. Principle of unity just try to explain we are same, and the principle of diversity says that we are different. Every component on earth is unique, and here component in the terms of biological components, simply you can say that like every person is unique. आप यूनिक हैं, है ना। यू हैव यूनिक फिंगरप्रिंट। आपका जस्ट इमेजिन दिस थिंग दैट नियर अबाउट 8 बिलियन पॉपुलेशन, आई थिंक, है ना। इज आई एम राइट? कितना पॉपुलेशन है? 8 बिलियन है ना। हाँ, मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री कौन सा है? मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री चाइना था। चाइना था बच्चों। इंडिया, अभी इंडिया टॉप पे है ना। चाइना सेकंड पोजीशन पे पहुंच चुका है। So every person is unique, every component, living component is unique. This principle is known as principle of diversity. Basically one most important principle when we talk about the evolution, जब हम evolution की बात करते हैं तो इसमें एक important principle आ जाता है, principle of active tendency. You know that some organisms are very active and very basically, you can say that, you can't say powerful, but you can use a best appropriate word here, have the capabilities to adapt themselves according to environment. कुछ ऑर्गेनिजम्स में ये कैपेबिलिटी है, ये क्षमता है कि वो अपने आप को अडेप्ट कर रहे हैं, है ना। लाइक मॉस्किटोज, at a very initial stage we use DDT to control the population of mosquitoes, but nowadays what is happening? आजकल क्या चल रहा है? आजकल मॉस्किटो कंट्रोल नहीं होते हैं DDT से। And in good old days people say that after summer mosquito population will be goes down just because of hot wind flow known as loo in our area, है ना। सुना है आपने लू? लू शब्द सुना है?
हम जब 6th 7th में वो पढ़ते थे ज्योग्राफी, तो वहाँ पे हमें पढ़ाया जाता था कि उत्तर भारत में चलने वाली गर्म हवाओं को लू कहते हैं। सो बेसिकली हॉट एयर, जो हॉट विंड जो ब्लो करती है, नोन एज लू। सो आफ्टर लू, in our area people says that कि भाई the population of mosquito will be goes down, कि लू में मॉस्किटो किल हो जाएंगे। but nowadays what is happening, mosquito persist even in winter, है ना भैया, विंटर में परसिस्ट कर रहे हैं मॉस्किटो। विंटर में आके जो है वो आपके ब्लैंकेट के अंदर आके आपको बाइट कर रहे हैं, है ना, उनको कुछ नहीं हो रहा है ना, उनको जो है तो ये क्या है, तो लू, L O O, लू, लू को लू ही कहते हैं, है ना, ये हवाओं का नाम ही है, इसमें हिंदी इंग्लिश नहीं है, लू। ठीक है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूअस प्रोडक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल ऑफ continuous production? Basically you can harvest the wood from a particular tree if you just cutting small branches, है ना। आप एक ट्री से कॉन्टिन्यूअसली वुड हार्वेस्ट कर सकते हैं अगर आप उसमें से छोटा छोटा ब्रांचेस कट कर रहे हैं। एग्री करते हैं उस पॉइंट से आप, आपके पास में ट्रीज हैं, है ना, उन ट्रीज से हम क्या करते हैं, उनकी ब्रांचेस हमने हार्वेस्ट कर ली, कट कर लिया, देन इट विल बी रीजनरेट अगेन। वी कैन हार्वेस्ट fishes multiple time if we use the concept of sustainable yield. And what is a sustainable yield? We will discuss in uh, ecology. But basically, if you just make a threshold point and try to harvest the thing, then you can harvest the product continuously. ये पॉइंट कितने बच्चों को समझ में आया है? If you just trying to harvest the product within a threshold value, you can continuously harvest the thing. अगर आप एक पेड़ को, ध्यान से सुनो, जड़ से नहीं काटते तो आप उससे दोबारा से वुड ले सकते हैं, है ना। भाई आपके पास में यू हैव ए ऑर्चिड ऑफ एप्पल, है ना, आपके पास में ऑर्चिड ऑफ एप्पल है, आप उसे हर साल ऑर्चिड से जो है हर साल एप्पल ले सकते हैं।
गुड। तो ये है प्रिंसिपल का कौन सा प्रिंसिपल, कॉन्टिन्यूअस प्रोडक्शन। प्रिंसिपल ऑफ एडेप्टेशन, प्रिंसिपल ऑफ एडेप्टेशन basically we talk about the natural selection. Principle of active tendency and natural selection is the different thing. Survival of fittest, ये जो है आपने सुना होगा। है ना। So basically we know that a number of the organism is going to extinct day by day, but some organism persist since a long time. Some organism change themselves according to weather condition, according to climatic situations. All these things will be come under the principle of adaptation. आप किस तरीके से जो है अपने आप को मेंटेन करते हैं। different organisms have different methods, different strategy, and nature itself have its own method to select the organism who will be survived. नेचर के पास भी अपना एक क्या है सिस्टम है जिसको बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द आर्टिफिशियल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन जो हमने 10th पे पढ़ा था। तो ये आता है आपका प्रिंसिपल ऑफ एडेप्टेशन के अंदर। प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी फ्लो, एनर्जी फ्लो इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। एनर्जी फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जितना हम समझेंगे उतना नो बच्चे, एक्टिव टेंडेंसी इज नॉट आर्टिफिशियल एडेप्टेशन। नहीं, वो अपने आप को रजिस्ट कर रहे हैं। इन एक्टिव टेंडेंसी मींस वो खुद अपने आप को रजिस्ट कर रहे हैं एक सिंगल कंपोनेंट के लिए, एक सिंगल फैक्टर के लिए। इट इज नॉट नेचुरल सिलेक्शन। यू कैन जस्ट टेक द एग्जांपल ऑफ वेट लिफ्टिंग, है ना। आप वेट लिफ्टिंग का एग्जांपल लीजिए। me and most of you can't lift even 50 kg weight, है ना। हम लोग 50 kg भी वेट नहीं उठा सकते, है ना। हम 50 kg भी वेट लिफ्ट नहीं कर सकते, बट a weight lifter can lift near about 100 kg weight or more than 100 kg weight. It is not adaptation, it is active tendency, है ना। ये क्या है, एक्टिव टेंडेंसी है। चलो 180 मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मैं 180 उठा लेता हूं, ठीक है। मेरी बात समझो, ठीक है। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मॉस्किटो जस्ट मेक themselves strong toward to dose of DDT। उन्होंने DDT को रिफ्यूज कर दिया है कि भैया DDT से हम नहीं मरेंगे।
समझ रहे हैं, हम लू से नहीं मरेंगे। समझ रहे हो आप? जैसे वेट लिफ्टर अपने आप को क्या करता है, वेट लिफ्टर अपने आप को ट्रेन करता है। एट इनिशियल स्टेज the weight lifter lift can 20 kg, then 30, 40, 50, 60 like this. Is it clear? जल्दी से बताओ बच्चे। Okay, good. So we were talking about the energy flow. Energy flow is one of the most important concept when you talk about the functions of ecosystem. As we know that energy flow basically depend on the eating process, and on our earth producers produce their own food with the help of photosynthesis, by the process of photosynthesis with the help of sunlight. And after that, primary consumer, secondary consumer, they just consume to each other. वो एक दूसरे को खा रहे हैं to fulfill the requirement of energy. And it is very important principle, as our food chain is limited only to 3 to 4 stages, because of the principle of जल्दी से बताओ। yes, principle of 10% एनर्जी फ्लो। बहुत अच्छे, है ना। 10% रूल की वजह से क्या है, ओनली 10% एनर्जी विल बी ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू नेक्स्ट। सो 10 to 1, 1 to 0.1, and after that 0.01. It is very important. If this flow is not in the same manner, then it could be possible that food chain can be extended up to 6-7 level. अगर ऐसा ना हो तो हो सकता है फूड चेन 6-7 स्टेजेस तक चला जाए। So when we focus on the flow of energy, then we clearly understand a lot of the concept of food chain, food web, and how higher trophic level organism is under the constant threats, है ना। बहुत सारी चीजें हमें तभी पता चलती हैं भैया हायर जो एनिमल्स हैं बेचारों को प्रॉब्लम क्यों है, व्हाई वी शुड सेव द टाइगर, टाइगर का नंबर कम क्यों है ना। ये सब किस पे डिपेंड कर रहा है। Smaller food chain, more will be better, but we can't maintain the food chain. ये हमारे हाथ में नहीं है। food chain just confined 3 to 4 stages just because of the 10% rule. After that food chain can't sustain. उसके बाद तो फूड चेन सस्टेन कर ही नहीं सकता, क्योंकि एनर्जी लेवल ही नहीं बचा। 0.01 के बाद में क्या बचेगा, समझ रहे हो, 0.001। सो इट इज नॉट लाइक कि भाई हाई लॉन्गर फूड चेन और स्मॉलर फूड चेन। अगर इसके बाद में आपका एक भी आप ऐड करें, है ना, फॉर एग्जांपल टॉप कार्निवोर्स लाइक टाइगर, and you want to put another stage after that, then you can imagine that how much food required to sustain that particular food chain. उसको कितना फूड चाहिएगा, because I think in one sitting tiger can eat 80 kg or 50 kg meat. डाइट देखो उनकी, why diet is too high, because एनर्जी लेवल इज टू लो, एनर्जी लेवल उनका कम है वहां पे। इज इट क्लियर।
हायर एनिमल्स को ज्यादा खाना चाहिए क्योंकि वो क्या है, वो एपेक्स पे हैं, वहां पे फूड एनर्जी लेवल कम है। जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे एनर्जी लेवल कम होता जा रहा है, एनर्जी कम होता जा रहा है। तो क्या होगा, ज्यादा खाना चाहिएगा। बॉडी रिक्वायरमेंट उनकी हाई है, उनको ज्यादा मीट चाहिए। A principle of growth, principle of growth that we will take it in a positive sense. Every organism basically want to grow, and you can say that positive changes in the size with time. हर एक चीज बढ़ रही है ना। You just plant a, you just put seed into soil, then after some days what will be happen, that life will be initiate and it will start to grow. आप एक सीड भी रखेंगे, उस सीड से पेड़ बनेगा। So it is the fundamental principle of life known as प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ। हर एक चीज ग्रोथ करती है, वो एक इनिशियल स्टेज से लेके मैच्योरेशन तक पहुंचती है, और इससे के साथ साथ इट विल क्रॉस ए नंबर ऑफ द स्टेजेस, दे फॉलो ए कंप्लीट प्रोसेस, है ना। यू कैन जस्ट टेक द सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन, है ना। हम कैसे जो है बड़े होते हैं, किन किन स्टेजेस से हम जो है निकल के बाहर आते हैं। And ultimately, last principle of environmental science is principle of behavior. That means your actions and your behavior. How you will interact with each other, how you interact with other organisms, and how you interact with non-living things. This is come under your behavior. आपके बिहेवियर में ये चीज आती है ना। आपने देखा होगा, यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ सम काइंड पर्सन, दे जस्ट ट्राई टू सेव द एनिमल्स, है ना। आप कुछ लोगों को देखते हैं कि वो आपके चारों तरफ जो है एनिमल्स को बचाने में लगे होते हैं, है ना। हम देखते रहते हैं छोटे बच्चे जो हैं, दे आर सो काइंड। वो छोटे छोटे जो डॉगी बाहर घूमते रहते हैं, उनको खाना खिलाते रहते हैं, है ना। जैसे मैं देखता हूँ अपने सराउंडिंग्स में, एवरी टाइम जो है जो मेरे सराउंडिंग्स में किड्स हैं, कोई भी छोटा उनको डॉगी मिलता है, दे जस्ट उसको वहां से उठा के छोटा घर बनाएंगे उसका, एंड उसको पानी रखेंगे, उसको खाना देंगे, है ना। ये किस चीज में आएगा, आपके आपके बिहेवियर के अंदर आएगा, है ना। आपके एक्शंस क्या हैं, आप किस तरीके से बिहेव करते हैं, एक दूसरे के साथ में कैसे बिहेव करते हैं, आप दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ में कैसे बिहेव करते हैं, हाउ यू विल बिहेव विद योर नॉन लिविंग थिंग्स, आप नॉन लिविंग थिंग्स के साथ में कैसे आप बिहेव करते हैं। समटाइम वी कैन फाइंड आउट दैट कि आप लोकल बस में, लोकल ट्रेन में जो है ट्रेवल करते हैं, सम पीपल जस्ट ट्राइंग टू पुल आउट द फोम फ्रॉम सीट्स। देखा है आपने, कुछ लोग ऐसे बैठे होते हैं और फिंगर से वो सीट कवर के नीचे से फोम निकाल रहे होते हैं। व्हाई? बिहेवियर, है ना। ये आपका बिहेवियर है, आपने ये चीजें नोटिस की होंगी, है ना। वो ऐसे चीजें खराब कर रहे होते हैं, है ना। गाड़ियों का, लोकल ट्रेन का कुछ भी लिख देंगे, मोनूमेंट्स पे कुछ भी लिख देंगे, है ना, ट्रीज पे कुछ भी लिख देंगे, है ना। एमे ही उनको कुछ मतलब भी नहीं है, फिर भी वो जो है प्लांट उखाड़ लेंगे। व्हाई? वहीं पे हमने देखा है कि सम पीपल जस्ट ट्राई टू सेव द ट्रीज, है ना। जैसे मोस्टली इन द हम देखते हैं गांव में कि अगर कोई ट्री ऐसा आ जाता है खेत के बीच में, तो मोस्ट ऑफ द फार्मर डोंट कट डाउन, है ना। बहुत सारे किसान उसको काटते नहीं है,
वो ऐसे खेत के बीच में ही वो ग्रो कर जाता है। All these things come under the behavior. When we think or work on all these principles, then definitely we can find out our scope in environmental science. अगर ये सारे principles हमें समझ में आते हैं तो हम क्या करते हैं, अपना स्कोप फाइंड आउट कर सकते हैं कि हम जो है इन्वायरमेंट में कैसे काम करें, कहाँ कहाँ पे हमें जो है स्कोप मिल सकता है। Scope of environmental sciences: ecosystem structure and function. A number of the ecologists work on this sector. बहुत सारे लोग जो हैं इकोसिस्टम फंक्शंस पे काम करते हैं, इकोसिस्टम स्ट्रक्चर पे काम करते हैं, हाउ वी कैन maintain particular ecosystem, how a particular ecosystem work, how we can create a artificial ecosystem, how we can maintain it, what is the going wrong with the function of a particular ecosystem, why the structure of ecosystem is going to disturb. A lot of the research work is going on this sector, है ना। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे इकोसिस्टम पे काम करते हैं, जैसे कि you can take example of some tree like sesame. If I'm right about the botanical name, it is Soria robusta. I'm not very sure about it. Sesame का botanical name यही होता है, सोरिया रोबस्टा किसका होता है? मेरे को याद आ रहा है ये सोरिया रोबस्टा, साल 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 ओके, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ, ठीक है ना। साल, है ना। साल ट्रीज इज नॉट ग्रोइंग इन राजाजी नेशनल पार्क, है ना। उत्तराखंड में आपने देखा होगा कि साल साल के ट्रीज हैं, बट वो ट्रीज बहुत पहले के हैं, है ना। बहुत बड़ा फॉरेस्ट है उत्तराखंड में साल का, जो वहां पे नेशनल 2-3 नेशनल पार्क हैं, है ना। तो जहां भी आपने साल ट्री देखा होगा, तो साल ट्री जो है वो आजकल बहुत ज्यादा ग्रो नहीं कर रहे हैं। जितने भी ट्रीज हैं वो बहुत पहले हैं, है ना। उनका जो नंबर है साल का वो बहुत कम होता जा रहा है, अगर हम ग्रोइंग की बात करें, है ना। ऐसा मैंने जो है एक साइंटिस्ट थे उनके साथ मैं बात कर रहा था, तो उन्होंने जो है इस पे बताया कि वो कुछ काम कर रहे थे, है ना। हालांकि आई एम नॉट टू मच इंटरेस्टेड अबाउट दिस थिंग, बट उन्होंने कहा तो मेरे को थोड़ा सा लगा कि सोरिया रोबस्टा जो है वो बहुत ज्यादा ग्रोथ अब नहीं करते हैं, है ना। वैसे ही जो है आपका शीशम का ट्री है, उसका लाइफ भी बहुत जो है लॉन्ग होता है, एंड इट विल टेक लॉन्ग टाइम टू ग्रो। Nowadays, it is very hard to find the sesame tree. आजकल आपको शीशम जो है उसको बहुत कम देखने को मिलता है। इन आवर विलेज इट इज वेरी हार्ड टू फाइंड आउट नाउअडेज। शीशम आजकल ऐसे बहुत ही कम दिखाई देता है, कोई पुराना ट्रीज ऐसे हो तो हो, है ना। सो इट इज जस्ट ए सिंपलेस्ट एग्जाम्पल। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे स्कोप से बाहर हैं, है ना, बट इसमें बहुत सारा काम हो सकता है। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कंट्रोल, डेफिनेटली environmental pollution control have its vast scope. environmental pollution का अपने आप में बहुत बड़ा स्कोप है ना। जब भी आप environmental pollution की बात करते हैं, then very first how to detect the pollution, how we can control the pollution, कितनी सारी चीजें हैं। if you want to work on this sector, तो आप जो है
इस पे कितना चीजें सोच सकते हैं, कितनी चीजों पे आप इस पे काम कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट ऑफ ईच एंड एवरी सेक्टर, ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट। कितनी सारी चीजें हैं इन्वायरमेंट के मैनेजमेंट के सेक्टर में, जहाँ पे बहुत सारी जॉब्स हैं, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। इंडस्ट्रीज, in industries are basically a number of the positions are related to environmental science. You can just take the simplest example of ETP officer, environmental officer, environmental engineer, environmental consultant। कितनी सारी positions हैं industries में जहाँ पे लोग काम कर रहे हैं। Research and development, research and development, it is one of the most growing sector in environmental science। हमें एक्चुअल में पता ही नहीं है ना। ये सच्चाई है, ये बिल्कुल सच है कि क्या जीवन में चल रहा है उसका हमें पता ही नहीं है। We just happy that I'm a student from JNU, I'm a student from Forest Research Institute, I'm from BHU। हम केवल इसी चीज में हैं। भाई दुनिया कहाँ बस रही है ना। व्हाट डू यू नो अबाउट व्हाट इज द रिसर्च इज गोइंग ऑन इन इन्वायरमेंटल सेक्टर्स। एक से एक चीजें बन रही हैं, एक से एक कंट्रोल डिवाइसेस जो है बनाई जा रही हैं, है ना। वी जस्ट ट्राई टू मेक द इको फ्रेंडली थिंग्स। कभी सोचा है आपने कि किस तरीके से जो है आज चीजें चल रही हैं। पीपल आर ट्राइंग टू मेक द पेस्टिसाइड दैट किल स्पेसिफिक प्लांट बाय द सिलेक्शन। कितनी बड़ी बात है ये, है ना। आप एक पेस्टिसाइड अप्लाई करोगे, वो केवल उसी प्लांट को किल करेगा जिसके लिए वो बनाया गया है। इस पे कितनी रिसर्च हुई है। और धीरे धीरे पहले ऐसे आपके पास में बिल्कुल ऐसे पेस्टिसाइड थे जिनको यूज करना बहुत मुश्किल था। आप टारगेट स्पेसिफिक बनाए गए हैं। टारगेट स्पेसिफिक में भी आप जो है इस तरीके के बनेंगे कि वो केवल और केवल जो है आपके टारगेट को ही हिट करेगा, रेस्ट ऑफ आपके किसी भी क्रॉप को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा एंड इट विल बी कंप्लीटली बायोडिग्रेडेबल, है ना। वो कंप्लीटली बायोडिग्रेडेबल होगा एंड इट विल नॉट हैव एनी एडवर्स इफेक्ट ऑन द फार्मर हेल्थ। उसका फार्मर हेल्थ पे कोई असर नहीं होगा। इफ यू जस्ट टॉक अबाउट अ सिंपल एन एग्जांपल ऑफ पेस्टिसाइड, आजकल जो है टारगेट स्पेसिफिक है, बट उनका एडवर्स इफेक्ट कितने हैं। फॉर every year a number of the farmer just lose their life just because of applying the pesticides। हर साल बहुत सारे फार्मर्स मारे जाते हैं, अपनी जान को खो देते हैं, क्योंकि वो क्या कर रहे होते हैं, फर्टिलाइजर अप्लाई कर रहे होते हैं। अप्लाई करते करते जो है उनकी डेथ हो जाती है। Social development, when you talk about the social development, then the concept of sustainability is most important। सोशल डेवलपमेंट जब भी हम सोचेंगे तो सस्टेनेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है ये आपके माइंड में आना चाहिए, है ना। आजकल जो है ESG, है ना। ESG सुना है आपने। है ना, सुना होगा। आजकल बड़ा ट्रेंड में है ESG, इन्वायरमेंट सोशल गवर्नेंस, है ना। सभी किसी को कुछ पता नहीं है, बट ESG बोल दो आप तो आपको का थोड़ा सा ग्रेस बन जाता है। हाउ इट वर्क नो वन नोज अबाउट इट, ये कैसे काम करेगा। बट हाँ, courses is going on, people earning the money by launching the courses। A number of the student just apply the certification course for ESG, and after that they put the certificate on WhatsApp status। Yes, I'm happy, I completed my ESG course। किसी को कुछ नहीं पता, है ना, कैसे काम करता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। कोई भी चीज, है ना, आप क्या कर रहे हैं, ठीक है, आप
इफ यू टॉक अबाउट द EIA कैसे काम करता है, लाइफ साइकिल असेसमेंट कैसे काम करता है ना, कुछ भी चीज कैसे काम कर रही है, सस्टेनेबिलिटी हाउ इट वर्क, व्हाट डू यू मीन बाय सस्टेनेबिलिटी, कैसे उसको अचीव करेंगे, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। डिफाइनिंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट सस्टेनेबिलिटी, इट इज नॉट अ टफ टास्क, है ना, किसी बच्चे को बोल दोगे तो वो भी बता देगा, बट हाउ एक्चुअली इट वर्क इन ए कंट्री लाइक इंडिया जैसे देश में कैसे काम करेगा, वेयर एवरीवन इज करप्टेड, है ना, जहाँ पे हर कोई करप्टेड है, वहां पे आप ESG की बात कर रहे हैं, वहां पे आप जो है सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू ए डाटा, लास्ट ईयर 30 lakh towel stolen from the AC रेलवे कोच, 30 लाख तौलिए लोगों ने चोरी कर लिए। इमेजिन कर सकते हैं आप, और AC में नॉर्मल लोग ट्रेवल नहीं करते हैं, है ना। आई थिंक उसका मेरा खुद का एक्सपीरियंस नहीं है, तो उसको ज्यादा प्रैक्टिकली मैं नहीं बता सकता, बट अकॉर्डिंग टू मी AC स्लीपर और आई थिंक कुछ कॉमन कुछ इस तरीके के जो 3 फेज होती हैं, उसमें AC शायद सबसे महंगा होगा, है ना। अकॉर्डिंग टू ए रिपोर्ट 30,000 टॉवल्स चोरी हुए हैं पिछले साल, 50 lakh pound has been disappeared, 50 लाख पौंड गायब हो चुके हैं। People just fill the pond and convert it into the agriculture land or establish the building, establish the industry on it. 50 लाख पौंड जो हैं गायब हो चुके हैं, है ना। ये डाटा है। So if we talk about the social development, you must know about how things will be worked, and if you know how things will be worked, then definitely you can earn a lot of the money, you can earn a lot of the fame in the sector of social development. Environmentalist, very charming term. Every student who pass out MSc just मेक द बायो, आई थिंक उसको बायो ही बोलते हैं ना, जो आप फेसबुक पे को फिल करते हैं, सोशल मीडिया पे कुछ, अगर मैं सही हूँ, है ना। इन मामलों में मेरी नॉलेज थोड़ी कम ही है, बट ये मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स हैं जो हमें इजीली समझ में आते हैं, है ना। बायो में लिखते हैं इन्वायरमेंटलिस्ट, क्यों भाई, बिकॉज वी पास आउट MSc। Nowadays, what is happening with our education system? If you enroll some degree, then definitely you will be pass out. अगर आप कोई भी डिग्री में एनरोल कर लेते हैं, अगर आपसे छोड़ते नहीं है ना, तो आप पास आउट हो जाएंगे। But environmentalist, basically it is a great job if we know how we can proceed it. अगर आपको ये समझ में आ जाए कि ये कैसे काम करता है, if we talk about environmentalism, you can just list down some great environmentalists of India, and I would like to start the list by the name of Sundarlal Bahuguna ji. ठीक है, मैं उनसे बहुत प्रभावित हूँ, मैं उनसे बहुत बार मिला हूँ, एंड बहुत बार मैंने ये चीज देखी है ना। उसमें आप उनसे बात करोगे तो जस्ट नॉट अबाउट द चिपको मोमेंट, their knowledge about the tree, their knowledge about the river, their knowledge about the how we can conserve the soil and a lot of the things. जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने मुझे ऐसी ऐसी बातें बताई कि इंडिया के किस कोने में कौन सा ट्री
लगाना चाहिए, क्यों लगाना चाहिए, कितने साल में ग्रो हो जाएगा, वो कितनी जल्दी ग्रो होगा, है ना। उनको इतना नॉलेज उस चीज पे था। हम केवल क्या सोचते हैं कि भाई हाँ हम कुछ भी एजिटेट करेंगे। यू मस्ट नो अबाउट द फैक्ट। टेहरी डैम में उन्होंने कितनी चीजें की, है ना। इट ये अलग बात है कि भाई वो सक्सेसफुल ज्यादा नहीं हुए ड्यू टू द पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ऑन दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, बट उन्होंने सोचा तो सही, फैक्ट तो उन्होंने सोचने पे मजबूर तो किया। So environmentalism basically it is not like doing the agitate. Environmentalism means you are just doing something great in the sector of environment by putting your knowledge on this sector. आप अपने नॉलेज को इंप्लीमेंट करके कुछ अच्छा कर रहे हैं। राजेंद्र सिंह, है ना, वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। सुनीता नारायणन, है ना, नाम सुना है आपने, सुनीता नारायणन। वंदना शिवा, ये सब बहुत बड़े इन्वायरमेंटलिस्ट हैं। और ये केवल एजिटेट ही नहीं करते, इनके पास में नॉलेज है, फैक्ट है, एंड इनका ग्रेट इम्पैक्ट है। इनके लिए पैसा मैटर नहीं करता है ना। इनके लिए पैसा मैटर नहीं करता है। ये आपका डाउन टू अर्थ मैगजीन का नाम सुना है? सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एंड साइंस, दिल्ली में है। उनकी डाउन टू अर्थ मैगजीन है। इंडिया की बेस्ट मैगजीन है इन्वायरमेंट साइंस को लेके। ऑनलाइन मिल जाएगी, झांसी में नहीं मिलती, ऑनलाइन परचेज कर लो। तो वो क्या है, वो बहुत बड़े इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, उनकी चीजें हैं, उनके लिए पैसा कोई बड़ी चीज नहीं है। मनी, वो मनी के लिए काम नहीं करते। है ना, तो आपको भी वैसे ही करना पड़ेगा। आजकल सोशल मीडिया सबसे पॉपुलर हुआ है। न्यूज, न्यूज एंकर, एवरीवन इज टू करेक्टेड, है ना। मैंने तो न्यूज देखना ही छोड़ दिया। मैं न्यूज नहीं देखता, मैं न्यूज पेपर भी नहीं पढ़ता हूँ। ठीक है, ऐसे बोलते ना कि भाई न्यूज पढ़ देखनी चाहिए, न्यूज़पेपर पढ़ने चाहिए। मैं बिल्कुल नहीं पढ़ता हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि आपको भी नहीं पढ़ने चाहिए, मेरा अपना ओपिनियन है। ठीक है, हमने बहुत सारे जो है जो यूपीएससी की बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं उनसे सब्सक्रिप्शन लिए हुए हैं। जैसे कि हमें एग्जैक्ट वही चीज आती है कि भाई जैसे कि जो हमें चाहिए, है ना, हमें जितना वो चाहिए तो ठीक है। आप भी जो है अगर बाजीराव से किसी भी ऐसे से, मैं ये नहीं कहूँ कि आपको वही वो करना चाहिए ऐसा। अगर न्यूज तो आप सुनते हैं तो टाइम वेस्ट है ना, बट आप उनका सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो अभी क्या चल रहा है ना, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, नेशनल पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है ना, नेशनल इकोनॉमिक्स में क्या चल रहा है, उनके आप सब्सक्रिप्शन ले लेंगे, या उनका जो है बुकलेट जो है आता है 6 मंथ पे मंथली, वही भी अच्छा, है ना। ये नहीं लूसेंट वगैरह जो ये सोशल मीडिया पे ये ठीक है, ये कुछ नहीं है, वो ले लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बट एक्चुअल में अगर आप इन्वायरमेंट के इश्यूज राइज करते हैं, पर्टिकुलरली आप इन्वायरमेंट के सेक्टर में ही काम करना चाहते हैं, और उसको एज ए न्यूज आप चाहते हैं कि लोगों तक वो पहुंचे, तो ये भी बहुत अच्छा सेक्टर है। तो उसके लिए आपके पास में नॉलेज होना चाहिए। आप किसी भी प्रोजेक्ट को अपोज ऐसे ही नहीं कर सकते जैसे कि आजकल हो रहा है
कि भाई हम ट्रीज नहीं कट होने देंगे, है ना। ये चीज हो रही है कि भाई वो 50 ट्रीज विल बी कट डाउन फॉर दिस प्रोजेक्ट, चलो मोमेंट करते हैं। आपको उसके पीछे का फैक्ट पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि क्या उसका अल्टरनेटिव है ना, क्या उसे बेहतर तरीके से किया जा सकता है, क्या उसको रिस्टोर किया जा सकता है, क्या ट्रीज को ट्रांसलोकेट किया जा सकता है। अ लॉट ऑफ द थिंग्स आर हियर। अब मैं सिंपल सा एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप किसी भी मुद्दे पे सोचेंगे तो आपको ये करना पड़ेगा, एंड डेफिनेटली यू कैन मेक योर करियर इन दिस सेक्टर। ग्रीन एडवोकेसी, ग्रीन जज ऑफ इंडिया कौन है? जस्टिस कुलदीप सिंह, ग्रीन एडवोकेट ऑफ इंडिया किसको माना जाता है? एमसी मेहता जी को। सो ये नाम इतने फेमस क्यों हैं? बिकॉज बहुत काम किया है इन्होंने, है ना। एमसी मेहता जी ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने मोस्टली इन्वायरमेंटल इश्यूज के लिए पीएचडी किया है। आजकल बच्चे ऐसे करके जो ऐसे थोड़े से नेता टाइप बच्चे हैं, कॉल करते हैं कि सर इंडिया का हर बच्चा इन्वायरमेंट का जुड़ा हुआ है आपसे, ठीक है, आप कुछ करते क्यों नहीं है? भाई हम क्या कर सकते हैं? हमारा काम है अच्छे से पढ़ाना, हम आपको पढ़ा सकते हैं, ठीक है। आप जो है एमसी मेहता जी के पास में जाइए, वो कुछ कर सकते हैं, है ना। बट उनका मोटिव क्या रहता है कि मैं बच्चों से फंड इकट्ठा करूं, ये कह के कि भाई हम इन्वायरमेंट के लिए कुछ कर रहे हैं। क्यों करना है? बच्चा पढ़ाई के लिए पैसा दे रहा है, इट इज ओके। बच्चा डिप्लोमा कर रहा है, कुछ कर रहा है, इट इज ओके। बट अगर आपने एजिटेट करना है या कोई पीआईएल फाइल करना है या कोई ऐसा, तो आप ग्रीन एडवोकेसी की तरफ जाओ ना। आप अपना प्रोजेक्ट रखो, इन लोगों से मिलो, बहुत इसमें पैसा भी है, स्कोप भी है आप, है ना। जस्ट नेता बन के क्या होगा? फिर तो फैक्ट रखो ना। व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, व्हाई इट मस्ट बी कंपल्सरी, जैसे कि एमसी मेहता जी ने किया। इन्वायरमेंटल साइंस, इन्वायरमेंटल स्टडीज, इट मस्ट बी कंपल्सरी एट ग्रेजुएशन लेवल। इन्होंने किया। ए नंबर ऑफ द PIL like Yamuna Action Plan, Ganga Action Plan, and a number of the project जो अगेंस्ट द आपके इन्वायरमेंट थे, उन पे काम किया। देन गंगा एक्शन प्लान शुरू हुआ, यमुना एक्शन प्लान शुरू हुआ। इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं। और जब आप इस लेवल पे पहुंच जाते हैं कि आपको लोग ग्रीन एडवोकेट कहने लगे, देन पैसा कोई बड़ी चीज नहीं है, बट यू मस्ट हैव द नॉलेज अबाउट इट। किसी भी चीज की नॉलेज, नॉलेज इज ब्यूटीफुल, नॉलेज इज पावरफुल। अगर आपको नॉलेज नहीं है ना, तो कुछ कुछ भी नहीं है। ग्रीन मार्केटिंग नाउ इट इज इको फ्रेंडली। व्हेन आई यू जस्ट पुट sticker of eco friendly on any component, price will be automatically goes high, है ना। इट इज हैपनिंग नाउ इट इज। किसी भी प्रोडक्ट पे आप इको फ्रेंडली का लोगो लगा दो, उसका प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? Because people are very much aware about all these things. They know that eco-friendly means it will be health friendly, it will be your pet friendly, it will be environment friendly. Because if you're purchasing something that is eco-friendly or environmental friendly, then people just say that yes, you are educated or aware person. यही होता है, दिखावे का जमाना है। अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट खरीदते हैं जिसपे ग्रीन लोगो लगा हो, तो आप कहोगे कि ये देखो, ये इन्वायरमेंट को कम नुकसान देता है ना। लाइक दैट ऑर्गेनिक।
someone said that it is organic, and a wheat, it is organic, and they're selling the wheat near about 5,000 per 100 kg. And just ask, what is this? It is organic. ऑर्गेनिक के नाम पे आप वीट को 5,000 kg, इससे भी ज्यादा होगा, ये तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है ना. एंड इवन नॉन रिफाइंड शुगर, नॉन रिफाइंड शुगर बेसिकली इन आवर एरिया नोन एज बाय द नेम ऑफ शक्कर, है ना. उसका प्रोसेस थोड़ा अलग होता है. One person just selling the non-refined sugar in my area in Patiala, basically, and price was too much high just because he said that it is organic. आप ऑर्गेनिक के नाम पे कुछ भी बेच रहे हैं, that is the green marketing. Actual में what is organic, no one knows about it. किसी को पता ही नहीं है कि भाई ये ऑर्गेनिक क्यों है. They just said that we don't use pesticide on it. That means it is organic. अगर आप पेस्टिसाइड अप्लाई नहीं करते हैं तो ऑर्गेनिक हो गया. People don't know about the process of certification. People don't know what is actually organic or not. But green marketing have its own scope. You can sell the things at a higher price on the name of the green marketing, but actually if you want to work in this field, it has large scope, बहुत scope green marketing का है. अगर आप इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाते हैं, इको एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट बनाते हैं, एंड आप जो है जो एडिबल प्रोडक्ट हैं उनको ऑर्गेनिक फॉर्म में आप तैयार करते हैं, देन श्योरली आप बहुत अच्छा स्कोप इसमें कर सकते हैं. सो basically all these are the sector where we can work, but the last and the most important thing is that you must have the knowledge about the environment and what is actually you want to do. आपको असल में क्या करना है, ये सबसे महत्वपूर्ण है. ठीक है बच्चों. सो आज के लिए इतना ही.